Okay, so we will start our lecture 3 today of Unit 4, which we were discussing. And today, what we will do is we will go on with linearity and superposition, expectation values. This two things we have already done. Now is the thing, like, first we will fix and talk about expectation values. Linearity and superposition तक हमने last time ही कर लिया था. So we will start with a very classical example. You know that an average is given by summation ni xi upon summation ni represented by x bar. इसको एक छोटे से example से समझते हैं. That in a company we have three people who have salary 50,000, let's say. एक कंपनी में तीन लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 है. फिर पांच लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 है और दो लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 है. और आपसे कहा है कि कोई भी एक एवरेज, आपने एक बंदा उठाया, उसकी एवरेज सैलरी कितनी होगी. तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट. इट्स इजी. एवरेज सैलरी विल बी इक्वल्स टू टोटल मनी स्पेंट ऑन सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. इट्स इजी. तो हमने देखा तीन लोग 50,000 सैलरी उठा रहे थे, प्लस पांच लोग 10,000 सैलरी उठा रहे थे और दो लोग 20,000 सैलरी ले रहे हैं. डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉइज कितने हुए? तीन और पांच, आठ. आठ और दो 10. दैट्स द एवरेज सैलरी. यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर. बता सकते हो क्या होगा इसका आंसर? ओके, 1,50,000 plus 50,000 is 2 lakh. 2,40,000 divided by 10 is 24,000. Yes, exactly. तो यहाँ पे जो ऊपर चीज दी है ना, that 3 people have salary 50,000, 5 people have 5 people have salary 10,000, 2 have 2,000. इसको बोलते हैं एक स्पेशल तरीके से, what we can call it as salary distribution. इसी चीज को यूज करके तो हमें पता चला how we are going to calculate the average. तो ये पता होना जरूरी है कि कितने लोगों को कितनी मिल रही है. That is called as salary distribution. ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल था. एक अलग से एग्जांपल और लेते हैं. सिमिलरली इफ वी हैव पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन. पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? इमेजिन दैट यू हैव अ लाइन. एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमने ये बोला है कि इस लाइन पर इफ यू विल मूव ऑन, that at a particular position, particular number of particles will be present. At a particular position, particular number of particles will be present. Done? So, आप ऐसे मान सकते हैं, for example, you are moving from भगवान टॉकीज क्रॉसिंग टू ताजमहल, और बीच में जो भी चौराहा पड़ता है, you are considering that as a particular position, और उस चौराहे पर कितने पुलिसमैन प्रेजेंट है, that you are going to find out. So on, let's say, Hari Parvat crossing, there were five policemen present. On St. John's crossing, there were 7 policemen present. इस तरीके से हम मान सकते हैं कि it is sort of a distribution. और using that you can then average out कि अच्छा एक particular position पे on an average इतने policemen थे. Fine. So similarly, if we have position distribution, that at x1 position you have n1 particles, at x2 position you have n2 particles, and so on. The average position can be written as ni xi divided by ni. जैसे पहले एवरेज सैलरी निकाली, टोटल सैलरी अपॉन टोटल एम्प्लॉय. इस तरीके से इस पोजीशन पे इतने, दूसरे पे इतने, डिवाइडेड बाय टोटल, यू कैन गेट द एवरेज. ऑन एन एवरेज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पुलिसमैन? दैट इज आल्सो ट्रू. बट when we deal with single particle, ये तो तब हुआ जब you are dealing with n type of particle system. When you are dealing with single particle, then number को you will have to replace by probability. For example, I want to find the particle in a small region around a point xi. ठीक है, उसकी probability बतानी है. So you read this line carefully. We must replace the number of particles ni at xi by the probability, या by लगा लीजिए, the probability pi that the particle be found in an interval dx around xi. You have a point, let's say यहाँ,
उस पॉइंट के इर्द गिर्द एक छोटा सा एरिया dx मान लीजिए, whether that particle will be present inside or not will be given by a probability. तो जैसे you had salary distribution, इसी तरीके से we now have probability distribution for position of finding a particle. ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो सकती है, यानी एवरेज वैल्यू हो सकती है. तो इस प्रोबेबिलिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऐसे. तो व्हेन वी डील विद सिंगल पार्टिकल, हमें पता है कि हमने सिंगल पार्टिकल को नंबर के बजाय प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दिया कि इस चौराहे पर कोई पुलिसमैन मिलेगा या नहीं मिलेगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देयर आर 30% चांसेस, 40% चांसेस, नो चांसेस, इट डिपेंड्स. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एवरेज अगर आप लेंगे तो दिस इज वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर एरिया, या हम कह सकते हैं ओवर ए स्मॉल विसिनिटी डीएक्स. तो एवरेज ऑफ एक्स निकालेंगे तो दिस एवरेज इज गिवन बाय एक्स मॉड्यूलस साई आई स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ साई आई स्क्वायर. तो आप जानते हैं दैट मॉड्यूलस ऑफ साई आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी. ये इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? अगर आपने ये लेक्चर 1 अच्छे से देखा है तो कोई बता सकता है. व्हाट वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज? एनीवन? Normalization. Exactly. It is normalization. So if a wave function or the probability distribution function psi I is normalized, then from minus infinity to plus infinity, it should be 1. So in a way, I can write that the average value then should be equals to just this. What? Minus infinity to plus infinity x psi I square dx. अब ये एवरेज ओवर एंटायर रीजन हो गया है. देखिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है. हो सकता है कि ये एवरेज आपको कुछ छोटे इंटरवल में दिया हो, तो वो इंटरवल यहां मेंशन कर देंगे. सो दिस इज नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड. ओके, तो इस फॉर्मूले में, और ये जो अभी हमने समेशन वाला फॉर्मूला देखा उसमें बस देयर इज ओनली स्मॉल इशू कि हमने एन आई को साई आई स्क्वायर dx के साथ इंटीग्रल से रिप्लेस कर दिया. तो इंटीग्रल हैज कम इन प्लेस ऑफ द समेशन और ni की जगह पे ये पूरा टर्म आ गया है. दैट्स इट. आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. क्लियरली. फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटे से एग्जाम्पल पर आते हैं. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक. आपको साई ऑलरेडी दिया हुआ है. वैल्यू ऑफ साई इज गिवन एज a इंटू एक्स, बट दिस इज बाउंडेड फंक्शन. ये साई की वैल्यू a इंटू एक्स तब है व्हेन यू आर इन बिटवीन 0 to 1. यानी अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इसमें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साई? 0. If you will put x equals to 1 in this function, यानी at x equals to 1 your psi will be a. It's simple. और इसके अलावा अगर आप 0 या 1 के अलावा कहीं और है, यानी नेगेटिव में है या 1 से ज्यादा है, तब psi की वैल्यू 0 दी है. तो दिस इज हाउ दे हैव डिफाइंड द फंक्शन. जैसे कहा आपको सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वैसे ही साई यानी वेव फंक्शन की डेफिनेशन दे दी. वेव फंक्शन ऐसा है. नाउ दे आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन. Find the probability. They are asking you probability that the particle can be found between x equals to 0.5 से x equals to 0.55. It is straightforward. It is simple. दूसरा क्वेश्चन है find the expectation value of finding the particle's position. Expectation value x of the particle's position. तो पहले probability, बाद में expectation. तो पहले probability निकालते हैं. Probability is directly mod psi square dx over the limits provided. Can you solve this? It would be simple, na? A into x square. So probability calculate करेंगे, it would be easy. 0.545 से 0.55 psi की जगह लगा दीजिए ax. तो what will come out? x cube by 3 into a square. X cube by 3 into a square. Now you put the values of 0.45 and 0.55.
Okay, so I'm assuming that's pretty simple. You can do that straightforward. कर लेंगे. Next is to calculate expectation value. Expectation value calculate करने के लिए you will have to take minus infinity to plus infinity. अब देखिए expectation value पूछिए और region नहीं specify किया है, यानी you will have to take entire region. Region नहीं specify किया है. That's why we will take minus infinity to plus infinity x mod psi square dx. Okay. But for that, if you want to apply this formula, you should also check whether or not your minus infinity to plus infinity mod psi square dx equals to 1 or not. इस केस में psi equals to ax के लिए minus infinity to plus infinity अगर mod psi square dx कैलकुलेट करेंगे तो क्या 1 आएगा या नहीं, और अगर नहीं आएगा तो उस वैल्यू से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा. ठीक है. Okay, yeah. Let me just try to show that to you on a pen and paper screen. So please tell me when you are able to see that screen. Stop sharing, stop presenting. Window. So if you are able to see that, please let me know. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So the thing is that it goes something like this. Let's say this is our minus infinity to plus infinity. This is 0. From here till 0, our function is 0. Minus infinity से 0 तक function is 0. 0 onwards, our function becomes equals to a times x. And but this type of a definition is given only till x equals to 1. And after 1, this function is again 0. So can you tell me at x equals to 1, what is psi if y represents psi? It will be equals to a into x, because psi was given by what? Ax. So at x equals to 1, psi becomes equals to 1 a. Okay. Now we will check whether 0 to 1 mod of psi square dx is equals to 1 or not. Why I'm taking only 0 to 1 and not minus infinity to plus infinity? Because my function is 0 elsewhere. This is the reason. Okay. I can take it and then break it like this. Minus infinity to plus infinity modulus of psi square dx can be written as minus infinity to 0. और क्योंकि psi 0 है तो 0 dx हो जाएगा. फिर प्लस 0 to 1 modulus of psi square dx plus 1 to infinity modulus of psi square dx. But these are 0, that's why I ignored it. So I have this function. It is given by what? A square x square dx equals to 1. देखिए वैसे तो complex conjugate लेना पड़ता, but the function is itself real. That's why we don't have any issues. So further calculating it, you will get a square x cubed by 3 from 0 to 1. So what is the value? What is the value? From 0 to 1 mod psi square dx. बताएं? But it would be easy. It's a square by 3. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So our minus infinity to plus infinity mod psi square dx is not equals to 1. That's why we should change the concept. अब अगर आपको एवरेज पोजीशन निकालनी है, then what you will do? You will use the same formula. कौन सा? That the average position x is given by minus infinity to plus infinity x modulus of psi square dx divided by minus infinity to plus infinity
मॉड्यूलस ऑफ साई स्क्वायर dx. ये तो 1 तब था जब नॉर्मलाइज था, अब नहीं है नॉर्मलाइज तो करना पड़ेगा. So you will have to divide it. So what are you expecting to be x? See, it is meaningful only within the boundaries 0 to 1. X is x. What is mod psi square? A square x square dx divided by, इस पूरे की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले a square by 3 निकाली है. ठीक है. Solving further, it is a square upon a square by 3 multiplied by x की पावर 4 by 4 0 to 1. See, x square into x cube हो गया, और x cube का इंटीग्रल x की पावर 4 by 4. Am I right? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now you tell me what is the average x? 3 by 4. 3/4. 3/4. Exactly, it is 3 by 4. और अगर आप वैसे कैलकुलेट करते जैसा स्लाइड में मेंशन था, then you would have end up with the wrong answer. So don't put formulas blindly. Okay, I will come back to my slides. So you have to, and probability can be calculated like this. This is fine. हमने minus infinity to plus infinity ना निकाल कर यहाँ से आप probability you can easily calculate. This is fine. You can calculate it like this. But this formula is wrong. You cannot calculate average using this formula only. Next is, same procedure can be followed for expectation of any quantity which is not bounded by uncertainty principle. मतलब आप हर क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी क्वांटिटी का नहीं निकाल सकते जो कि पोजीशन के साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है. जैसे आप केवल पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो सच अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन. दैट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड लाइक दिस सिंपल फॉर्मूला. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट डू दिस. यू शुड नो कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. You should know कि वेव फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, and you just have to do this maths. अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो सब कुछ स्पेसिफाई कर देंगे कि gx ये फंक्शन है, psi ये फंक्शन है. You can calculate it easily, but there is limitation. फिर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे दोबारा से नॉर्मलाइजेशन, then you will get the right answer. But there are limitations on using this formula, that you cannot apply this for momentum px, because momentum and position are bounded by uncertainty relation. In above type of things, we are very certain about positions. That's why it will not be true if we are talking about momentum. Okay, so अगर आप uncertainty relation से bounded है, then you should not be using this type of operators or this type of expectation values. This is true. You will have to follow that. ठीक है. क्यों y क्यों लगाया था, इसका आंसर मैंने दे दिया. Why we cannot do this? Because of uncertainty principle. Okay, so the same bound also imposed on energy and time. या x is position, and that we are very certain about. हमने position के हिसाब से तो distribution function लिख दिया है. So it means that you cannot be very certain about the distribution function of momentum. तो इसका कुछ अलग तरीका होगा फिर एवरेज निकालने का. इसका तरीका है जो हमें मिलता है, हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी. देन तरीका है ऑपरेटर्स. सो नाउ वी आर ऑन द 6th पड़ाव ऑफ आवर कंटेंट्स. वी विल स्टडी ऑपरेटर्स. उससे पहले, ऑपरेटर्स पे जाने से पहले आप समझिए, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब समझ आया. इट्स सिंपली कैलकुलेटिंग एवरेज, बट एवरेज इंटीग्रल के फॉर्म में कैलकुलेट करना है. ठीक है. और ये चीज हमें चेक कर लेनी है कि क्या फंक्शन दिया गया है जो नॉर्मलाइज है या नहीं. अगर नहीं है तो डिवीजन वाला टर्म आपको सेफ रखना है. अदरवाइज इफ इट इज नॉर्मलाइज्ड, you can definitely omit the division term. Okay, any question till now? Can we move further?
ओके, मैं आपकी नाम में भी हाँ समझ लेता हूं। ऑपरेटर समझते हैं। हमें एम क्या है हमारा, हमें ये देखना है कि कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली जा सकती है मोमेंटम और एनर्जी की। लेकिन उससे पहले हम ऑपरेटर्स पढ़ने आ गए, बिकॉज ऑपरेटर्स आर द की टू द सोल्यूशन। जैसे एक वेव इक्वेशन दी है, दिस इज द वेव इक्वेशन, ए ई टी पावर आई बाय एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। एक फ्री पार्टिकल की इक्वेशन है हैविंग मोमेंटम p एनर्जी e। आप जानते हैं, if you would take the derivative, the very first derivative of psi with respect to x, you will get ip h cross something, which is same as ip psi by h cross, which is same as this particular thing. So momentum multiplied by psi is same as you are taking h cross upon I times the first derivative of psi with respect to x. तो अगर आप h cross upon I से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो दैट गिव्स यू व्हाट, मोमेंटम। सो ये क्वांटिटी, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर बिकम्स योर मोमेंटम ऑपरेटर। कोई साई दिया है, उस साई का आपको मोमेंटम फाइंड करना है, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस और ऑपरेट दिस ऑन योर साई, यू विल गेट द मोमेंटम। बता सकते हैं कि जो पहला हमारा ये वाला एग्जांपल था, साई इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स, उसका मोमेंटम कितना रहा होगा? कैन यू टेल मी? It was simple. Take first derivative of ax with respect to upon I. s, a h cross upon I. A h cross upon I. Correct. Yes. Yeah, exactly. So momentum can be imaginary. Are you getting it? Similarly, we can do for energy. Energy के लिए, अच्छा मैं बाद में स्लाइड दिखाऊंगा, पहले अगर आपने यूनिट लेक्चर 1 और 2 देखे हुए तो आप बता सकते हैं एनर्जी में किस का डेरिवेटिव या किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, केवल टी के रिस्पेक्ट में। यू सी, डेल साई बाय डेल टी किया, ये हो गया माइनस आई बाय एच क्रॉस ई, और ये पूरा टर्म। सो इट इज एज इफ आई एम टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टी, मल्टीप्लाइंग विद बाय माइनस एच क्रॉस अपॉन आई। ये माइनस इसलिए आ गया बिकॉज दैट्स हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज, तो इट बिकम्स दिस। तो अगर ई आप ऑपरेट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एनर्जी, आप टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एच क्रॉस अपॉन आई से। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम डेरिवेटिव के लिए टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ही ना हो, देन यू विल हैव टू सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, वी विल गेट टू नो दैट इन दिस क्लास इटसेल्फ और मे बी नेक्स्ट क्लास। तो ये दो ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, आपको समझ आए? मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, केवल डेरिवेटिव है और मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर। समझ आया? अब देखिए, ऑपरेटर में और वैल्यू में थोड़ा सा अंतर कर दिया है मैंने। दैट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके ऊपर एक छोटी सी टोपी, इसको हम हैट बोलते हैं। तो हैट मतलब हिंदी में टोपी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड टोपी। तो टोपी पहना दी है ई को और ई को, इट बिकम्स ऑपरेटर। ओके, let us move ahead. You know what is total energy? Total energy is given by kinetic plus potential. But kinetic energy can be written as p square upon 2m. So the kinetic energy operator can be written as momentum operator upon 2m. What was momentum operator? H cross upon I del by del x, इसका स्क्वायर ले लो। H cross upon I का स्क्वायर del square by del x square upon 2m। वही किया, आंसर आ गया। माइनस आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का मतलब माइनस, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बन गया। तो ये ऑपरेटर्स ही ऑपरेटर्स पढ़ते जा रहे हो। और आप जानते हैं कि एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दिस इज, लेट्स से यू इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर ये रहा माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल बाई डेल टी। ये रहा माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल बाई डेल टी, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है। ये रहा हमारे पास p स्क्वायर है। ओके, और u इज द पोटेंशियल एनर्जी से। देन इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साई, देन यू विल गेट एन इक्वेशन। ये इक्वेशन कुछ देखी सी लग रही है कहीं?
वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नाम बताइए। Schrodinger's equation, time dependent. Exactly. So time dependent. टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। तो In 3D. Yes, sir. हम लोगों ने जो ऑपरेटर्स की कहानी रची, हालांकि मनगढ़ंत थी, बहुत अजीब सी लग रही थी, ये क्या कर दिया, इसको ऑपरेटर कैसे मान लिया, लेकिन इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम एक सही चीज पर आ रहे हैं। इसका मतलब हम जो सोच रहे थे वो सही है, जो हम मान रहे थे वो सही है। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स वी कैन एक्चुअली कम टू द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन, तो इसलिए इसको सही मान लिया। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स इज वेरी वैलिड। तो एक वैलिडेशन चेक हो गया हमारा, ठीक है। तो अब आप अपनी कॉपी लेकर बैठे हैं, तो एक कॉपी में साइड में लिख लीजिए व्हाट इज द मोमेंटम ऑपरेटर। एक क्विज में पूछ लेंगे, एच क्रॉस अपॉन आई डेल बाई डेल एक्स। व्हाट इज एनर्जी ऑपरेटर, माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल बाई डेल टी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। साई नहीं लगाना है, ऑपरेटर में साई गायब होता है। जैसे देखिए इसमें मैंने कहीं भी साई नहीं लगाया है, गायब है। फाइन। आते हैं, देन हाउ कैन वी यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तो देखिए, अब जब आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो यू जस्ट पुट ऑपरेटर लाइक दिस। एक्चुअली वी पुट इट लाइक p cap mod psi square dx, लेकिन इट हैज नो मीनिंग इफ यू आर ऑपरेटिंग इट इन राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसको बीच में ही रख के ऑपरेट करना पड़ता है। कैसे? देखिए ये p इस साई स्टार साई तो एक नंबर के बराबर होगा, तो अगर आप देखेंगे साई स्टार साई, तो ये p अलग रह जाएगा, यू विल बी गेटिंग नॉन एग्जिस्टेंट सोल्यूशन। तो ये दोनों, whether you are operating from front or you are operating from back, has no meaning. The meaning is only when you will operate it in between psi star psi. Okay. So जैसे हम पहले वैल्यू रखते थे साई स्टार इंटू एक्स, अगर एक्स का निकालना है, जी एक्स अगर जी एक्स का निकालना है, तो वही सेम है। लेकिन अब हमने लिखा है साई स्टार पी साई। पी का मतलब क्या था, एच क्रॉस अपॉन आई डेल बाई डेल एक्स साई। तो क्या करना है, अगर आपको मोमेंटम निकालना है, तो साई का फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू डेल बाई डेल एक्स, फिर उसका मल्टीप्लाई कीजिए साई स्टार से, इंटीग्रेशन कीजिए, बाद में ये तो फैक्टर कांस्टेंट हो गया, तो आप बाद में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस p कैन ओनली बी ऑपरेटेड लाइक दिस, ऐसे और ऐसे नहीं, ठीक है। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करें तो आप चेक करिए, इफ यू कम ऑन दिस पर्टिकुलर फैशन, मैं आपको दोबारा से, वेरी सॉरी, आई विल हैव टू एनीवे स्विच इट इन बिटवीन माय प्रेजेंटेशन एंड this pen and paper. So is my pen and paper screen visible? Yes, sir. Yes, sir. So what I just said is this, that the expectation of p is given by minus infinity to plus infinity psi star p cap psi dx divided by minus infinity to infinity साई स्टार साइन dx। ये तो अगर नॉर्मलाइज है तो भूल जाते हैं, इसीलिए ये हटा के रखते हैं, कंसीडर दैट इट इज नॉर्मलाइज, ठीक है। नाउ ये एक्चुअली इसके बराबर बोल रहा हूं मैं, दैट इट इज सेम एज आई एम डूइंग दिस, p ऑन mod psi square dx। जैसे x mod psi square dx was for average of x, but here the operations and the operator कैसे ऑपरेट करेंगे उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे पहले हम आते हैं, इसका ये मायने, इसको हम कहते हैं, एक तरीका तो ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये भी है, आई कैन राइट इट एज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी p कैप साई स्टार साई dx। Okay, so it is like I am going to take h cross upon I minus infinity to plus infinity del by del x of psi star psi dx, del by del x of psi star psi dx, ठीक है।
अब इसमें क्या हुआ, ये dx and dx will be just going away, and this particular thing will have no solution. It is non-existent. It has no meaning. Weirdity है ये. It is weird. वहीं अगर आप ऐसे ले लें, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, साई स्टार साई कैलकुलेट कर लिया, फिर पी कैप लगाया. पी कैप का मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ dx. देन अगेन यू कैन टेक एवरीथिंग आउटसाइड, और ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ dx लेने का मतलब क्या है? नो मीनिंग. इसीलिए केवल एक ही मीनिंग बचता है, दैट व्हेन वी आर सेइंग डेल एवरेज या एक्सपेक्टेशन ऑफ p, इट इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार h cross upon I del by del x of psi into dx. It's like this. Okay. Although I was very rude in saying that this will cancel it together, but it is not going to cancel it together. The meaning is that you will get solution infinity minus infinity, which is of no use to us. This has a meaning. Okay. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Okay, so now I will again go back to my slides. Switch again. It is there. So that's why it is mentioned that it has no meaning. Similarly, you can calculate it for what did I happen? E. तो E को कैलकुलेट करने के लिए you can use del by del h minus h cross upon I del by del t psi. That will give you an average energy of E. हालांकि आपको वो कभी निकालने को दी नहीं जाएगी, because energy कैलकुलेट करने के लिए you will use another type of operator which is called as Hamiltonian. We will come to that later. लेकिन फिलहाल मोमेंटम कैसे पता करेंगे और डायरेक्टली क्यों नहीं पता कर पाए, ये दो चीजें पता होनी चाहिए. डायरेक्टली इसलिए नहीं पता कर पाए using the formula as that was used for position, because we are bounded by uncertainty within position and momentum. We cannot use it directly. We will have to use operator. तो अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, which is Schrodinger's equation in steady state form. एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का जो पोर्शन था कर लिया, ऑपरेटर्स का जो पोर्शन था वो कर लिया. आप पढ़ते हैं Schrodinger's equation in steady state form. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आसान है. देखिए अभी तक आपने जो सॉल्यूशंस पढ़े थे, दोज वर लाइक दिस. किसी को कुछ क्वेश्चन है? Pushpendra, I guess you need to mute yourselves. Okay. Fine. तो psi is equals to a to the power minus I by h cross ct minus px ऐसे दिया है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम वाला टर्म अलग और पोजीशन वाला टर्म अलग. So when you will take time वाला टर्म अलग, it will become I by h cross into et multiplied by, अब e जब एक्सपोनेंशियल खुलता है तो ऐसे ही खुलता है ये, into e आएगा to the power I by h cross minus minus plus px. यहां से यहां स्टेप स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर होना चाहिए. Then I have a term over here. देखिए मैंने ऐसे रीअरेंज कर लिया है, that it is equals to a e I by h cross px e की पावर माइनस I by h cross et. टाइम वाला टर्म अलग निकाल दिया, और फिर ये जो टर्म है पोजीशन वाला, a is constant anyways. I am considering that my amplitude is fixed. So e की पावर I by h cross px वाले टर्म को मैंने कहा चलो इसको एक अलग फंक्शन phi x मान लेते हैं. तो दिस इज psi function of position and time, which is equal to phi x, which is function of position only, into e to the power I by h cross et, function of time. इस चीज से अग्री करते हैं? छोटा सा स्टेप है. Now this was my Schrodinger's equation. We know that in this Schrodinger equation, ये E psi equals to, ये total energy equals to potential plus kinetic वाले टर्म से ये सब आ गया है. That is fine. But what we are now going to do is, we will replace this psi by what we have done. अभी psi को phi x into e to the power I by h cross et से रिप्लेस किया था, वो कर लिया है. तो इस इक्वेशन से इक्वेशन में कैसे आए, देखने में भले ही बड़ी सी डरी हुई सी डरावनी सी इक्वेशन लग रही है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है. We have just taken that time dependent term out.
और पोजीशन वाले को अलग रख लिया जिसमें मोमेंटम भी है। यहां से यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ओके, दैट्स Yes, वेरी sir. स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने कुछ नहीं किया है, साई को बस ऐसे रिप्लेस कर दिया, दिस साई इज इक्वल्स टू दिस इज दिस, ये वाला साई इज इक्वल्स टू दिस इज दिस, ये साई इक्वल्स टू दिस इज दिस। देन what we can do is we can cancel out all the time dependent terms from both side। अब कैंसिल कर दिया तो बचेगा बस ये e into psi x। अब देखिए इसमें टाइम डिपेंडेंट टर्म है ही नहीं, केवल पोजीशन और मोमेंटम वाला टर्म बचा, is equals to minus h cross square over 2m del square psi x by del x square। This is not a multiplication, this is representing that phi of x is a function u phi of x। यही जो इक्वेशन आई इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहां क्या किया है हमने, ये 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को इधर ले गए, फिर e को u से माइनस कर दिया है, 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को इधर ले गए। You see, we have taken ex u psi over there, 2m upon h cross square इधर ले गए, माइनस था इसलिए वो प्लस हो गया, that's fine, no worries। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। या फिर आप ये जो लास्ट में जो इक्वेशन आई है इसको ऐसे ऊपर वाली इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या ऐसे लिखें, बोथ आर टाइम इंडिपेंडेंट या कहते हैं स्टेडी स्टेट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। लेकिन एक चीज आपको फिक्स याद रखनी है स्टेडी स्टेट श्रोडिंगर्स इक्वेशन में, वो क्या? कोई गेस कर सकता है? एनीवन वुड लाइक टू पुट इन? यस सर। हाँ बताइए बताइए। एक चीज जो बहुत अहम है और मैंने अभी तक नहीं बताई है, ये तो ठीक है, ये ई साइड बात चल गई, ये भी चल गया। व्हाट इज देयर दैट कैन आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम? द पोटेंशियल एनर्जी यू। रिमेंबर दैट यू, आप डबल चेक कर लीजिएगा, यू हैज टू बी ओनली एंड ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन, देन ओनली यू कैन अप्लाई स्टेडी स्टेट फॉर्म, देन ओनली यू कैन अप्लाई स्टेडी स्टेट फॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे यू ही अपने आप में was not a function, was not purely function of position but was also a function of time, तो हम काट नहीं सकते थे ऐसे टाइम डिपेंडेंट टर्म, फिर वो स्टेडी स्टेट नहीं रहती, टाइम डिपेंडेंट ही रहती। सो एक क्विज का सवाल बन गया या सीए का सवाल बन गया, पूछा जा सकता है, what are the essential conditions for which are to be imposed on potential energy for steady state Schrodinger's equation? So the potential energy which can be a function of time will now be only function of position and not at all function of time। ठीक है, अगर वो टाइम पर डिपेंड करती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, then there is a problem, then you will have to solve it in a very different way। Got it? So this equation del square phi x upon del x square plus 2m upon, अरे ये h क्रॉस स्क्वायर दो बार आ गया, एक h क्रॉस स्क्वायर काट लो इसमें से, ये वाला हटा देना, this h cross square should not have come। correction कर लिया? Yes, sir. Please do the correction। e minus u multiplied by psi of x equals to 0, that is it। ठीक है, e and u can be constant, they can be functions of x, psi of x is always function of x। so this is what completes our three things। तो अभी हमें क्या पढ़ा हमने? What we did is, इस पर ये जो कार्टून चल रहा है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले देखेंगे पोजीशन का ऑपरेटर होता है ओनली x, मोमेंटम का ऑपरेटर होता है h क्रॉस अपॉन i del by del x, पोटेंशियल एनर्जी विच हैज टू बी ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन, उसका ऑपरेटर है ux दिया गया है। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली ux को यूज करके निकाल सकते हैं, ux ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर माइनस h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m del square psi by del x square, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर h क्रॉस अपॉन i del by del t। ओके, और हैमिल्टोनियन फॉर्म, यहां थोड़ा सा गलत हो गया, हैमिल्टोनियन फॉर्म इज नॉट दिस फॉर्म, हैमिल्टोनियन फॉर्म इज दिस फॉर्म प्लस ux। आप इसे सही कर लीजिए, यहां पे आई एम मेकिंग अ करेक्शन, नॉट दिस h क्रॉस अपॉन i del by del t but minus h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m del square psi by del x square plus ux, दैट अदर साइड। ये तो उल्टा हो गया ना, टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये नहीं। If you are writing total energy in terms of Hamiltonian form, like kinetic energy plus potential energy, and not in terms of time dependent operator, then it is kinetic plus potential।
तो ये दोनों को ऐड कर लेना. दिस इज रॉन्ग. माइंड दैट. नोटेड. Yes, sir. ओके. तो इसमें माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल बाय डेल टी की जगह पे ये डालना है आपको. माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स, जैसे इस इक्वेशन में था. ये रहा. ये ऑपरेटर प्लस यू, ये डेल स्क्वायर बाय डेल. फिर हमने आज ऑपरेटर्स के अलावा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पढ़ी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आप ऐसे निकाल सकते हैं किसी चीज की, या फिर स्टेडी स्टेट Schrödinger's equation में ये minus h cross square again it is there. Let me just correct it if I can. Let me just see. Anyways, I should be able to do that. Just correct it on board. Okay. This is just 2m. So I have corrected this one. This one also needs to be corrected. It is not this. Rather, it is this particular thing plus ux. So it will change the margins and all, but don't worry about that. I'll just stretch it. Looks fine. Then we also had an issue with this h cross. We'll just clear that as well. That's it. All corrections done. Back to our slides. So now we already understand expectation values, we understand operators, and we also did Schrödinger's equation in steady state form, right? So as per our plan, in the next classes we will do particle in a box, finite potential well, an example of tunneling also, and harmonic oscillator. Okay, that we can keep for our next class. Anyways, if you have doubt or queries, you can ask me. So this type of a function is particle in a box, जो कि हम अगली बार पढ़ेंगे, अभी नहीं. कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कुछ पूछना चाहता है? I know it is all mathematics and direct mathematics will be asked in exam. No games, no place. Any doubt? Excuse me, sir. पूछिए. Your voice is not clear. Can you please be a bit louder? बताइए. सर मुझे सर एच क्रॉस के बारे में पूछना था सर. ये कांस्टेंट है एच क्रॉस? Okay, let me just explain it to you on pen and paper. Explain करने की भी बात नहीं है. You are 100% right that this is a constant. अब ये कौन सा constant है? I will let you know. Let me just switch to pen and paper mode. Yeah. So have you seen this symbol ever? H. यस सर. क्या कहते हैं इसे? सर प्लैंक्स कांस्टेंट. Exactly. When we divide Planck's constant by 2 pi, it is given by h cross. Greek लोगों के काम है. Okay? ओके सर, थैंक यू. It is a constant. 2 pi constant होता है या नहीं? Pi की वैल्यू constant होती है, h की भी constant. तो it is a universal constant in fact. Anything else? Anyone else? Okay. So let me just stop it from recording.